Welcome dear friends. In this video we will solve mock test number 7 for upcoming CSS MPT. The shortest surah of the Quran is Surah Al-Kawthar. The prophet mentioned by name most frequently in the Quran is Hazrat Musa alayhi salam. The only woman mentioned by name in the Quran is Hazrat Maryam alayhi salam. Surah Al-Ikhlas occupies number dash in the standard arrangement of the Quran, number 112. A mursal hadith is one in which a successor attributes a report directly to the Prophet ﷺ, omitting the companion. A report described as mawquf is attributed to a companion. Sahih Muslim was compiled by Muslim ibn Hajjaj. Al-Jami, one of the 6 well-known hadith collections, was compiled by Abu Isa al-Tirmizi. The woman traditionally remembered as the first martyr of Islam was Hazrat Sumayya binti Khayyat raziyallahu anha. Before the Hijrah, the Prophet ﷺ sent Dash to Yathrib to teach Islam. Hazrat Musab ibn Umair raziyallahu anhu. At Uhud, the Muslim archers were stationed at the elevation commonly known as Jablul Rumah. Salatul Janazah differs from the 5 daily prayers because it contains neither ruku nor sujood. The Iqama announces that the congregational prayer is about to commence. A person permanently unable to fast because of chronic illness may ordinarily discharge fidya by feeding a needy person for each missed fast. The juristic principle that an established state of affairs is presumed to continue until evidence changes it is istishab. Ijara is a contract principally concerning lease or hire for unknown consideration. The Dome of the Rock in Jerusalem was commissioned by the Umayyad Caliph Abdul Malik ibn Marwan. The Abbasid city of Baghdad was founded as an imperial capital by Al-Mansur. Kitab al-Hawi, a major medical encyclopedia, is associated with Al-Razi. Al-Jazari is celebrated in the history of science chiefly for work on mechanical devices and automata. लफ्ज़ वजीफ़ा की दुरुस्त जमा क्या है? वज़ाइफ। मुदीर की मुअन्नस सूरत कौन सी है? मुदीरा। कट कट किस किस्म का लफ्ज़ है? इसमें सूरत। अमानतदार में दार क्या है? लाहिका। दुरुस्त इमला मुंतखब करें। ऑप्शन बी इस्तेहकाक। जुमला वो मेरे पहुंचने से पहले जा चुका था में फ़ेल किस ज़माने का है? माजी बईद। दरवाज़ा बंद करो किस किस्म का जुमला है? अमरिया। जुमला वो मजमून लिख रहा है में रहा है क्या है? फ़ेल माविन। तरकीब 3 किताबें में 3 क्या है? सिफत अददी। लफ्ज़ लेकिन क्या जाहिर करता है? इस्तिदराक। इस्तिगना का करीबुल मानी लफ्ज़ क्या है? बेनियाजी। लफ्ज़ क़नूतियत का मफ़हूम क्या है? मायूसी। इजाज़ का मुतज़ाद क्या है? इतना। आड़े हाथों लेना का मतलब क्या है?
सख्त बास पुरस करना। बगले झांकना से क्या मुराद है? जवाब न बन पड़ने पर शर्मिंदा होना। रंग में भंग डालना का मफहूम क्या है? खुशी या काम में खलल डालना। द विटनेस गेव अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट का दुरुस्त उर्दू तर्जुमा क्या है? गवाह ने वाक़ये का मरबूत बयान दिया। द नोटिफिकेशन सुपरसीड्स ऑल अर्लियर इंस्ट्रक्शंस का मौजून उर्दू तर्जुमा क्या है? ये एलामिया तमाम साबिक़ा हिदायत की जगह लेगा। रिपोर्ट में आदाद शुमार की वजाहत की गई है का दुरुस्त अंग्रेज़ी तर्जुमा क्या है? द फिगर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द रिपोर्ट। फरीक़ैन ने तनाज़ा खुशअस्लूबी से हल किया का दुरुस्त अंग्रेज़ी तर्जुमा क्या है? द पार्टीज रिजॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली। अ बिनाइन इन्फ्लुएंस इज harmless or favorable. A cacophony is a harsh mixture of sounds. A debacle is a disastrous failure. To fetter discretion is to restrict it. Guile most nearly means cunning deception. A homogeneous group is uniform in relevant characteristics. An inscrutable motive is impossible to understand readily. A moribund institution is approaching extinction. A novice is a beginner. An orthodox view is conventionally accepted. A penchant for detail is a strong inclination toward it. A pusillanimous response is cowardly. Rancor denotes bitter resentment. A spurious distinction is not genuine or valid. A tenacious investigator is persistent. A utilitarian decision is chiefly concerned with practical usefulness. A verbose memorandum is unnecessarily wordy. A winsome manner is attractively pleasant. The police dash interviewing two witnesses are interviewing. The cattle dash moved to higher ground before the flood. The cattle were moved. This pair of scissors dash blunt is blunt. If the committee approves the plan, construction dash next month. Construction will begin next month. We shall notify you as soon as the minister dash a decision, makes a decision. The staff must have left the building. She is now accustomed to dash under pressure, accustomed to working under pressure. The proposal is worth dash in greater detail, worth examining. The scholarship enabled him dash his research abroad, enabled him to continue. Excessive abstraction can contribute dash public confusion, can contribute to public confusion. Members must abstain dash voting where they have a financial interest. Abstain from voting. The design must conform dash the approved specifications. Must conform to. The committee's findings coincide dash those of the external audit. Coincide with those. This is the district dash the pilot program began. Where the pilot program began. The blue folders are complete. The red dash still require signatures. The red ones still require signatures. The board objected to dash departure before the vote. To his departure. She has 10 dash experience in public finance.
10 years. Choose the correctly punctuated sentence. Option D. The revised rule issued after consultation takes effect in July. Select the correctly punctuated direct quotation. Option B. The chair said, comma, inverted commas, we shall reconvene tomorrow, and full stop must be inside inverted commas. Choose the sentence in standard English. Option C. No applicant had seen the confidential schedule. Select the standard adjective order. Option B. They occupied a beautiful old stone building. Before joining the service, she walked to the university every day. She used to walk. Question 81 to 85 are based on this passage. Groundwater beneath many farms is a common pool resource. One user's pumping can lure the water table available to others, yet excluding every unlicensed user may be costly. A rule that merely limits the number of wells can fail if farmers install more powerful pumps. Metering withdrawals is more precise, but meters require inspection and may be resisted where land records are disputed. Durable management often combines aquifer level limits, local monitoring, and incentives to adopt less water-intensive crops. Because recharge and demand vary, the allocation rule must also be revised when measurements show that the aquifer is declining faster than assumed. Why is groundwater described as a common pool resource? One user's extraction can reduce water remains for others. Why might a rule limiting well numbers fail? Users may increase extraction through more powerful pumps. The passage implies that metering is not sufficient by itself because it requires enforcement and must operate amid contested local conditions. Which combination best reflects the author's preferred approach? Aquifer limits, local oversight, and incentives for less intensive crops. Why should the allocation rule be revisable? Observed recharge and use may differ from the assumptions. Questions 86 to 90 are based on this passage. An archaeological object acquires much of its evidential value from context. A coin found in a seed layer can help date that layer, while nearby pottery and organic remains can illuminate trade and diet. Once the object is removed without a record of its position, those relationships are lost. Laboratory analysis may still determine its elei or approximate age, but it cannot recreate the precise association. This is why careful excavation is deliberately slow. Researchers document location, depth, and surrounding material before removal. The aim is not merely to collect attractive objects but to preserve information about human activity. The main purpose of the passage is to explain why archaeological context is essential to interpreting an object. A coin in a seed layer may help researchers determine the date of the layer. What cannot laboratory analysis recreate after an unrecorded removal? The object's exact association with surrounding material. Careful excavation is slow principally because researchers must document spatial and material relationships before removal. The author's conception of excavation is closest to the systematic preservation of information. Impulse is equal to the change in body's momentum. The power of a lens is measured in diopters. For a sound wave, a higher frequency is ordinarily perceived as a higher pitch.
The efficiency of a machine is the ratio of useful energy output to the total energy input, usually expressed as a percentage. When two identical resistors are connected in parallel, their combined resistance is half of the resistance of either resistor. An ionic bond is formed chiefly through electrostatic attraction after electron transfer. Reduction in electron transfer terms is the gain of electrons. Simple distillation is most suitable for separating a solvent from a solution containing a non-volatile solute. The Haber process combines nitrogen with dash to manufacture ammonia. Hydrogen. The functional group characteristic of alcohols is hydroxyl OH. Most absorption of digested nutrients in humans occurs in the small intestine. The medulla oblongata helps regulate involuntary activities such as breathing and heart rate. For red cell transfusion, the blood group commonly regarded as the universal donor is O negative. Mitosis ordinarily produces two genetically similar daughter cells. The plant hormone most directly associated with phototrophic bending of shoots is auxin. Biomagnification is the increase in concentration of a persistent pollutant is successively higher trophic levels. A food web differs from a simple food chain because it shows interconnected feeding relationships. The salinity of seawater refers to its concentration of dissolved salts. Latitude affects climate chiefly because it influences the angle and intensity of incoming solar radiation. The hottest planet in the solar system is Venus. The administrator of the United States Development Program as of 15 August 2026 is Alexander De Croo. The President of the European Parliament as of 15 August 2026 is Roberta Metsola. World Environment Day 2026 focused globally on climate action. Which team won the ICC Women's T20 World Cup 2026? Australia. The Prime Minister of New Zealand as of 15 August 2026 is Christopher Luxon. How many nations and territories participated in the Glasgow 2026 Commonwealth Games? 74. Who heads the Organization of Islamic Cooperation as Secretary General as of 15 August 2026? Hossein Brahim Taha. International Youth Day 2026 carried the theme Different Contexts, Common Aspirations. UNESCO's World Book Capital for 2026 is Rabat. Who serves as President of China as of 15 August 2026? Xi Jinping. Sindh Madrasatul Islam was founded in Karachi by Khan Bahadur Hassan Ali Effendi. The partition of Bengal took effect on 16 October 1905. The Morley-Minto reforms were embodied in the Indian Councils Act 1909. Muhammad Ali Jinnah returned from London to resume political leadership in India in 1934. The Khaksar movement was founded by Allama Inayatullah Mashriqi. The Muslim League joined the interim government of India in October 1946. The first session of Pakistan's Constituent Assembly commenced on 10 August 1947. Rawalpindi served as Pakistan's interim federal capital before offices shifted to Islamabad. Pakistan's first countrywide martial law was imposed in 1958.
The master plan for Islamabad is chiefly associated with the architect planner Konstantinos A. Doxydis. The central legislature under the Constitution of 1962 was unicameral. Article 1 of the Constitution names the state as the Islamic Republic of Pakistan. At the federal level, the Constitution provides equal representation of the provinces in the Senate. The Election Commission of Pakistan is provided for principally under Article 218. The Auditor General of Pakistan is a constitutional office under Article 168. Nanga Parbat has an elevation of approximately 18,126 meters. The Malakand Pass historically provides access from the Peshawar Valley toward Swat. The Haran Desert is situated in Balochistan. The Kabul River joins the Indus River near Attak. Uchali Lake, part of wetland complex in the Soon Valley, is located in Punjab. Evaluate 2.4 multiplied by 0.35 0.84. इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. 2.4 को मल्टीप्लाई करें 0.35 के साथ. अगर ये 0.35 आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि 1 के नीचे सर ये जो पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट के नीचे 1 आएगा और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे. तो आगे 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. तो आप 0.35 को लिख सकते हैं 35 ओवर 100. तो 2.4 को मल्टीप्लाई करें आप पहले 35 के साथ जिससे आ जाएगा 84. अब 84 को डिवाइड करें 100 के साथ जिससे आ जाएगा 0.84. If 5 over 12 of a quantity is 75, then 7 over 15 of the same quantity is 84. इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये है x, मतलब ये क्वांटिटी x के बराबर है. तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5 over 12 ऑफ x जो है मतलब 5x डिवाइड बाई 12 किस चीज़ के बराबर होना चाहिए 75 के बराबर होना चाहिए. तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो x की वैल्यू इससे क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाई 12 ओवर 5. मतलब ये जो यहाँ पर 5 ओवर 12 है ये इस साइड पे आ जाएगा तो इस साइड पे आके ये उल्टा हो जाएगा 12 ओवर 5. तो इससे आ जाएगा 180. अब इसका मतलब ये है कि जो क्वांटिटी है या जो नंबर है वो असल में है 180. तो 180 का जो 5 ओवर 12 है वो है 75. अब हमने इसका फाइंड करना है 7 ओवर 15. तो आसान काम ये है कि आप 180 को 7 ओवर 15 से मल्टीप्लाई करें. So 7 over 15 multiplied by 180 is 84. So 84 is the answer. A candidate score rises from 320 to 368. The increase is a percentage of original score is 15%. अब यहाँ पर एक बंदा है उसका स्कोर पहले जो है 320 था फिर वो पहुँच गया 368 तक. पहले हम फाइंड करते हैं कि इसमें इंक्रीज़ कितना हो गया. सो 368 से हम सब्ट्रैक्ट करें 320 को तो हमारे साथ आएगा 48. मतलब इसके स्कोर में जो इंक्रीज़ आया है 48. अब ये 48 जो है क्वेश्चन में असल में ये पूछा जा रहा है कि ये 48 ओरिजिनल स्कोर का कितना परसेंट है. तो इसका परसेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो जो नंबर अपटेंड होते हैं डिवाइड बाय टोटल होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है. जिस तरह हम नंबरों के परसेंटेज जो है फाइंड करते हैं. अब यहाँ पर हमने परसेंटेज फाइंड करना है सिर्फ इंक्रीज़ का. तो इंक्रीज़ यहाँ पर है 48. सो 48 डिवाइड बाई 320 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा. तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 15%. द रेशो ऑफ एन अमाउंट टू इट्स 12% इंक्रीज इज 25:28. यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 100 के बराबर है. तो अब 12% इंक्रीज़ का मतलब ये हो गया कि वो 100 से बढ़कर वो 112 हो जाएगा. अब ओरिजिनल और इंक्रीज का रेशो क्या बनेगा, वो बनेगा 100:112. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. मतलब 4 पे इसको भी डिवाइड करें और 4 पे 112 को भी डिवाइड करें तो हमारे साथ ये रेशो क्या बनेगी, जो सिंपलेस्ट रेशो है मतलब इससे और ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो है 25:28. A bonus is divided between 3 employees with the ratio 2:5:7. If the difference between the largest and smallest shares is rupees 30,000, the total bonus is rupees 84,000.
अब यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि 3 बंदों के दरमियान जो बोनस डिवाइड हो गया है वो डिवाइड हुआ है एट द रेशो 2:5:7। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 30,000। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि पर शेयर प्राइस कितना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले हम लार्जेस्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट को। लार्जेस्ट के है यहाँ पर लार्जेस्ट जो शेयर है वो है 7 पार्ट्स, तो 7 पार्ट्स से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट को। स्मॉलेस्ट के है 2 पार्ट्स, सो 7 पार्ट्स सब्ट्रैक्ट या -2 पार्ट्स। सो 7 से 2 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आएगा 5 पार्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर के दरमियान जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे साथ आएंगे 5 पार्ट्स। अब ये 5 पार्ट्स किस चीज़ के बराबर है? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर्स इज़ ₹30,000। तो इसका मतलब है कि ये 5 पार्ट्स बराबर है ₹30,000 का। अगर हम एक पार्ट की कीमत फाइंड करना चाहते हैं तो इसको भी आप 5 पे डिवाइड कर दें और ये 30,000 को भी 5 पे आप डिवाइड कर दें, तो 1 पार्ट की कीमत हमारे साथ आएगी 6,000। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट की कीमत जो है वो 6,000 है। तो टोटल बोनस हमने फाइंड करना है। टोटल बोनस के लिए हम टोटल पार्ट्स को पहले फाइंड करेंगे। टोटल की रेशो पार्ट्स कितने हैं? टोटल रेशो पार्ट्स है 2, 5 और 7। 2, 5 और 7 को आप ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 14। अब एक पार्ट की कीमत है 6,000। 6,000 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आंसर आएगा 84,000। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 18। The average of first 6 is 16 and that of the last 6 is 20. The sixth number is 18। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं? टोटल 11 नंबर्स है और 11 नंबर का जो एवरेज है वो 18 है। तो हम इससे जब टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198। मतलब टोटल हमारे साथ है 198। अब फर्स्ट 6 का जो टोटल है वो है 96 और लास्ट 6 का जो टोटल है वो है 120। तो ये जो टोटल है ये काउंट करते हैं द 6th नंबर ट्वाइस। मतलब इसमें जो 6 नंबर है वो 2 दफ़ा काउंट हो जाता है। तो 6 नंबर हमारे साथ क्या आएगा? 6 नंबर हमारे साथ आएगा 96 प्लस 120 को हम ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 198 से, जो कि इसके टोटल से आए हैं। तो हमारे साथ ये आंसर आएगा यहाँ पर 18। 20 workers working 6 hours a day complete a task in 15 days. At the same rate, 18 workers working 10 hours a day will require 10 days. अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है कि एक काम है, उसको अगर रोज़ाना 20 वर्कर 6 घंटे काम करे तो कंप्लीट करते हैं 15 दिन में। उसी सेम काम को अगर 20 वर्कर के बजाय 18 वर्कर्स हो जाए और 6 घंटों की बजाय 10 घंटे वो रोज़ाना काम करे तो फिर कितने दिन लगेंगे? तो पहले हम टोटल वर्क को फाइंड करते हैं कि टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट होगा दोनों कंडीशंस में। तो टोटल वर्क पहले कंडीशन में क्या होगा? पहले कंडीशन में चूँकि टोटल वैल्यूज़ सारे वैल्यूज़ दी गई है, 20 दिन है, 6 घंटे रोज़ाना काम है, 20 वर्कर्स है, 6 घंटे रोज़ाना काम है और 15 दिन का काम है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज़ 1800। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल काम है वो बराबर है 1800 वर्क आवर्स का। अब न्यू जो डेली वर्क है, मतलब जो नए बंदे डेली काम करते हैं वो कितने काम करते हैं? वो करते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 18 वर्कर्स है और 10 घंटे काम करते। तो एक दिन का काम उनका कितना बनता है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ 180 वर्क आवर्स। मतलब एक दिन में वो इतना काम करते हैं। अब टोटल काम जो है वो कितना है? वो 1800 है। तो 1800 पे डिवाइड कर दे 180 को, तो हमारे साथ आ जाएगा 10। तो इसका मतलब है कि 10 दिन लगेंगे इनको। A typist completes 3 over 8 of the report in 45 minutes. At the same rate, the whole report requires 120 minutes. अब एक टाइपिस्ट एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के लेट सपोज 8 हिस्से हैं, तो उस 8 हिस्सों के जो 3 हिस्से हैं मतलब 3 over 8 उस रिपोर्ट के वो कंप्लीट करते हैं 45 मिनट्स में। तो जो होल रिपोर्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? तो होल रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा 45 आप मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के इनवर्स के साथ। सो 45 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, 45 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 हमारे साथ आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरा रिपोर्ट कंप्लीट करने में 120 मिनट्स लगेंगे। A cyclist travels 24 kilometers at 120 km per hour.
rest for 30 minutes, and then travels 18 km at 9 km per hour. The average speed of the entire elapsed time is 9 whole 1/3 km per hour. अब पहले हम टाइम को फाइंड करते हैं कि जब वो 24 किलोमीटर ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर पर आवर में, तो इस पे टाइम कितना लगेगा. तो टाइम के लिए हमारे साथ फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. यहाँ पर डिस्टेंस 24 है पहले कंडीशन में, और जो स्पीड है वो है 12. सो 24/12 इज़ 2 आवर्स. फिर वो मतलब इसका मतलब ये है कि पहले 24 किलोमीटर वो 2 घंटे में ट्रेवल करता है, फिर वो रेस्ट करते हैं 30 मिनट्स के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए. तो रेस्ट बराबर हो गया हमारे साथ 0.5 आवर्स का. फिर सेकंड जो टाइम है वो क्या है, सेकंड टाइम है ये ट्रेवल करता है 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर. तो इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे अगेन स्पीड के साथ. तो 18 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस है, 9 इज़ द स्पीड, सो 18/9 इज़ 2 आवर्स. तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 आवर्स. तो अब टोटल टाइम हमारे साथ कितना बना, टोटल टाइम हमारे साथ बना 4.5 आवर्स. 4.5 आवर्स इन अ सेंस कि 2 घंटे ये हो गए, 0.5 आवर्स ये हो गए, और फिर 2 घंटे ये हो गए, सारे जमा कर दिए तो टोटल टाइम लगता है 4.5 आवर्स. और टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर ये कवर किए है और 18 किलोमीटर उसने ये कवर किए हैं. तो टोटल जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर उसने ये कवर किए हैं और 18 किलोमीटर उसने ये कवर किए हैं. तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पर वो हो गया 24 + 18 किलोमीटर. सो 24 + 18 इज़ 42 किलोमीटर. अब हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं. एवरेज स्पीड को फाइंड करने का फार्मूला ये है कि जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है और जो टोटल उसने टाइम लिया है वो कितना है. तो टोटल डिस्टेंस भी हमने फाइंड किया है, वो है 42 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम उसने लिया है वो भी हमने फाइंड किया, वो है 4.5. तो 42 को 4.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 whole 1/3 किलोमीटर पर आवर. Two persons start 210 km apart and travel towards each other at 40 km per hour and 30 km per hour. They meet after 3 hours. अब दो बंदे हैं, वो एक दूसरे से 210 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे की तरफ वो चल रहे हैं. एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. तो ये कितने टाइम बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगे. तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. तो इसी वजह से ये जो स्पीड है ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये चूँकि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है इनका आपस में वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो एक का 40 है दूसरे का 30 है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर. अब टाइम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड पे. तो डिस्टेंस को जब हम रिलेटिव स्पीड पे डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस है हमारे साथ 210, रिलेटिव स्पीड है 70. तो 210 डिवाइड बाई 70 इज़ 3 आवर्स. इसका मतलब ये है कि 3 घंटे बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹200. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर द टाइम जो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कमाता है वो उस इंटरेस्ट पे भी लगता है और प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगता है. अब यहाँ पर हमारे साथ अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, उसके लिए फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइड बाई 100 होल पावर n. यहाँ पर असल में n होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 years n हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितने ईयर्स की बात हो रही है. यहाँ पर 2 years की बात हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर पावर 2 आ गया है. यहाँ पर इसमें जो P है वो है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो R है हमारे साथ वो है रेट के इंटरेस्ट रेट कितना है. प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हमें दिया गया है जो कि 20,000 है, इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है जो कि 10% है, तो R की जगह 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा. और यहाँ पर जो है जो होल पावर n होता है वो साल हमें रिप्रेजेंट करते कितने साल है, तो साल है हमारे साथ यहाँ पर बात हो रही है 2 सालों की, तो ये पावर 2 आ जाएगा. इसको जब हम साल करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा ₹200. A sum doubles in 8 years at simple interest. At the same rate, it becomes 3 times in 16 years.
अब डबलिंग का मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है वो 100% का बराबर है ऑफ द प्रिंसिपल, और कितने सालों में, यहाँ पर साल ऑलरेडी हमें दी गए है 8 ईयर्स, मतलब 8 साल बाद जब 100% सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो वो हो जाता है डबल। अब इसको 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट जो है वो 200% होना चाहिए। अब 100% के लिए कितने साल लगे, 8 साल लगे, तो इसका मतलब ये है कि 200% के लिए कितने साल लगेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स लगेंगे, एंड डेट विल बी 16 ईयर्स। A trader sells 2 articles for rupees 1200 each, gaining 20% on one and losing 20% on the other. The overall result a loss of rupees 100. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले कास्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का फाइंड करेंगे। तो पहले आर्टिकल का जो कास्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, पहले आर्टिकल को उसने बेचा है 1200 पे और उसने जो उस पर गेन किया है वो 20% किया है, सो 1200 डिवाइड बाई 1.20 इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब ये है कि पहले आर्टिकल उसने 1000 पे ख़रीदा था और 1200 पे उसने बेच दिया। अब दूसरे आर्टिकल का हम कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं, तो दूसरा आर्टिकल उसने बेचा है 1200 पे और उसने नुकसान किया है इस पे 20%, सो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.80 पे। तो दूसरा आर्टिकल मतलब उसने ख़रीदा था 1500 पे। अब टोटल कास्ट प्राइस क्या हो गया, टोटल कास्ट प्राइस हमारे साथ हो गया 1000 प्लस 1500, तो ये हो जाएगा 2500, और टोटल सेल प्राइस हमारे साथ हो जाएगा टोटल सेल प्राइस हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि 1200 ईच पे उसने जो है ना ये दोनों आर्टिकल्स को बेचे हैं, तो 1200 प्लस 1200 दैट विल बी इक्वल टू 2400। अब टोटल लॉस कितना होगा, कास्ट प्राइस से आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल प्राइस को, तो हमारे साथ आ जाएगा ₹100। A price is reduced by 15%. By what percentage of the reduced price must it be increased to restore the original price? 17 whole 11 over 17%. अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट के मुताबिक जिस तरह दिया गया है कि 15% रिडक्शन दी गई है, तो 15% जब रिड्यूस होता है प्राइस तो कितना रह जाता है 85% ऑफ द ओरिजिनल। अब रिक्वायर्ड इंक्रीज़ कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड इंक्रीज़ के लिए हम 15 जो है वो 85 का कितना परसेंट है वो फाइंड करेंगे, तो 15 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ ये आएगा 17 होल 11 और 17%. A 25 liter mixture contains milk and water in the ratio 3:2. 5 liters of water are added. The new ratio is 1:1. अब यहाँ पर पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट मिल्क और वाटर की रेशो क्या है 3:2 इन 25 लीटर्स, मतलब 25 लीटर में ये है 3:2। तो अगर 25 लीटर में 3 रेशो जो है वो मिल्क की है और 2 जो है वो वाटर की है, तो इसका मतलब ये है कि मिल्क का मकदार कितना हो गया 15 लीटर और वाटर का मकदार हो गया 10 लीटर। अब 5 लीटर इसमें पानी ऐड किया जाता है, तो पानी जो है वो 10 लीटर के बजाय क्या हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। तो जो हमारे साथ न्यू रेशो बनेगी वो क्या बनेगी 15, जो कि मिल्क ऑलरेडी अपनी जगह पे 15 रहेगा और पानी जो पहले 10 था वो 10 से बढ़ के 15 हो गया, तो ये नया रेशो हो गया 15:15। तो 15:15 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 को हम 15 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे साथ नया रेशो आएगा 1:1। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर फ्रॉम 1 to 6 इज 60। अब इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं कि इस केस में हम एलसीएम फाइंड करते हैं उन सारे नंबर्स का, मतलब 1 to 6 जितने भी नंबर्स है वो है 1 2 3 4 5 6। अब इनका हम प्राइम पावर जो है वो फाइंड करेंगे, तो वो प्राइम पावर जो इसके है वो है 2 स्क्वायर 3 और 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर का मतलब है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज 60। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 17 इज 986। हमारे साथ जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। सो 999 को पहले आप डिवाइड करें 17 के साथ, तो तकरीबन आ जाता है 58 पॉइंट समथिंग। तो 17 को जब हम 58 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आ जाता है 986, और 17 को जब 59 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाता है 1003। 1003 पर हो जाते हैं 4 डिजिट नंबर, हमारा कंसर्न है 3 डिजिट नंबर। तो जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 17 है वो है 986। सो 986 इज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट डिजिट ऑफ 7 पावर 103 इज 3। जो
द पावर ऑफ 7 के जो यूनिट डिजिट्स है जो कि रिपीट होते हैं वो क्या होते, 7, 9, 3 और 1। ये यूजुअली 7 ऑफ द पावर के जितने भी नंबर्स हैं तो उनके यूनिट डिजिट्स आते हैं 7, 9, 3, 1। तो ये जो साइकिल है इसकी लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, मतलब इसकी लेंथ है 4। अब हम क्या करते हैं कि जो पावर क्या है यहाँ पर 7 का पावर है 103, सो 103 मॉडुलस 4 हम लेंगे। तो जब 103 मॉड 4 हम लेंगे तो हमारे साथ आएगा 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थर्ड डिजिट है इन द साइकिल जो कि यहाँ पर 3 है, ये हमारे साथ यूनिट डिजिट है ऑफ 7 पावर 103। A stack of 500 identical sheets is 5 centimeter thick. The thickness of one sheet is 0.1 millimeter. अब टोटल जो थिकनेस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का बराबर होता है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 50 मिलीमीटर। अब है 500 शीट्स जिनकी थिकनेस टोटल हमें दी गई है कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर की कन्वर्ट किया तो थिकनेस इसकी है 50 मिलीमीटर। अब वन शीट की थिकनेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो थिकनेस है इसको नंबर ऑफ शीट से डिवाइड करते हैं। सो 50 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। If the mean of a distribution is 26 and its median is 24, the empirical relation mode equals 3 median minus 2 mean gives the mode is 20। अब यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट में मोड किस चीज़ का बराबर है, मोड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका मतलब ये है कि मोड किस चीज़ का बराबर होगा, मीडियन ऑलरेडी दी गई है वो है 24, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 26, क्योंकि मीन यहाँ पर है 26 के बराबर गिवन स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमें दिया गया है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 20। सॉल्व 0.4x प्लस 1.8 इक्वल्स 5, x इक्वल्स 8। इसको सिंपल जो है x के लिए सॉल्व करना है। If x plus 2y equals 11, 3x minus y equals 5, then x plus y equals 7। अब यहाँ पर ये दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन की वैल्यू हम दूसरे में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 3x माइनस वाई इक्वल्स 5, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स 3x माइनस 5। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में, x प्लस 2y इक्वल्स 11। तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आएगा 3x माइनस 5। सो x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स 11। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे साथ आएगी 3। अब यही जो x की वैल्यू 3 आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे साथ y की वैल्यू आएगी 4। तो जो x प्लस वाई हमने फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की 4 आएगी, तो 4 और 3 को ऐड करें तो हमारे साथ आंसर आएगा 7। 1 root of x square minus kx plus 18 equals 0 is 3. The value of k is 9। अब एक रूट जो है वो क्या है, 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है x को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 3 के साथ। तो यहाँ पर x की जगह इस इक्वेशन में 3 को पुट कर दे। जब हम 3 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3k प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इसको हम k के लिए सॉल्व करेंगे तो k इक्वल्स 9। If a square minus b square equals 45, a minus b equals 5, then a plus b equals 9। यहाँ पर हमारे साथ या एक सिंपल फार्मूला यूज़ होता है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है जो कि 45 है, a माइनस बी की वैल्यू दी गई है जो कि 5 है, और a प्लस बी की हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे साथ a प्लस बी हो जाएगा 45 और 5 विच इक्वल्स 9। Simplify x square minus 4x plus 4 divided by x minus 2 for x not equals 2, x minus 2। अब यहाँ पर ये जो x square minus 4x plus 4 है इसको हम लिख सकते हैं x minus 2 होल स्क्वायर, जब हम a minus b होल स्क्वायर के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a की जगह हो जाएगा x, b की जगह ये 4 असल में 2 का स्क्वायर है तो b की जगह हो जाएगा 2। इसको a minus b होल स्क्वायर वाले फार्मूले में जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ ये वाला आ जाता है। तो इसकी जगह हम x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2। अब ये दोनों बेसिस चूँकि बराबर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके ख़त्म होने से चूँकि इसका पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये पावर 2 जो है ये 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये पावर 1 हो जाएगा, और पावर 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा x माइनस 2। x चूँकि 2 का बराबर नहीं है एज पर द स्टेटमेंट, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ गया x माइनस 2।
If f of x equals x over x plus 1, then f of 3 over 2 equals 3 over 5. गिवन स्टेटमेंट में f of x दिया गया है x over x plus 1 के बराबर. अब f of 3 over 2 हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि x की जगह आप 3 over 2 को पुट करें, तो हमारे साथ हो जाएगा 3 over 2 डिवाइड बाई 3 over 2 plus 1. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 3 over 5. सॉल्व 3 power 2x equals 81, x equals 2. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर बेस जो है 3 है, तो 81 को भी हम 3 के बेस पे लिखेंगे. 3 के बेस में लिखने का मतलब है कि 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 81 बन जाएगा. तो 3 जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो 81 के बराबर हो जाता है, मतलब 81 इक्वल्स 3 पावर 4. तो 81 की जगह हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं. सो 3 पावर 2x इक्वल्स 3 पावर 4. अब यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, तो जब दोनों साइड पे बेस बराबर हो जाता है तो हम जो है पावर है वो एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, मतलब पावर भी बराबर होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ये जो 2x है ये बराबर है 4 का. सो 2x इक्वल्स 4. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 का. रैशनलाइज 5 ओवर 5 अंडर द रूट. अंडर द रूट 5, इसकी रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि 5 ओवर अंडर द रूट 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अंडर द रूट 5 के साथ, मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंडर द रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ आएगा 5 इंटू 5 अंडर द रूट डिवाइड बाई 5. डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, क्योंकि अंडर द रूट 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने एक और अंडर द रूट 5 के साथ, तो दोनों अंडर द रूट में है और दोनों सेम ही चीज़ें हैं. तो दो चीज़ें जब अंडर द रूट में है तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हम 1/5 को बाहर निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अंडर द रूट डिवाइड बाई 5. अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आएगा अंडर द रूट 5. If A and B are disjoint sets with n of A equals 17 and n of B equals 23, then n of A union B is 40. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिसजॉइंट सेट्स का कंसेप्ट समझ आना चाहिए. डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, ये वो सेट्स होते हैं कि किसी भी सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट में मेंशन नहीं होता, इसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं. तो इसका ए यूनियन बी किस चीज़ के बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. अब एन ऑफ ए 17 है, एन ऑफ बी 23 है, तो 17 और 23 जब ऐड हो जाते तो इन दोनों का जो यूनियन है वो हो जाता है हमारे साथ 40. The sixth term of a sequence whose nth term is n square minus 1 is 30. अब हमें दिया गया है कि n टर्म के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो n स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है. तो n स्क्वायर माइनस 1 में हमने कौन सा फाइंड करना है, जब n 6 के बराबर हो, मतलब 6 टर्म फाइंड करना है. तो n की जगह हम 6 को पुट करेंगे. सो 6 स्क्वायर माइनस 6 इज 36 माइनस 6 विच इक्वल्स 30. The area of a regular hexagon of side 4 cm is 24 into under the root 3 cm square. अब यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है जिसकी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं. तो एरिया ऑफ ईच कितना होगा, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, चूँकि साइड हमें दिया गया है 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा. तो एक की जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 अंडर द रूट. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 6 इक्विलेटर ट्राइंगल्स होते हैं इसमें. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा 24 इंटू अंडर द रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. A triangle's sides are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 72 cm. Its shortest side is 18 cm. पहले हम रेशो को सम करेंगे 3, 4 और 5. इसको सम करेंगे तो 12 पार्ट्स बन जाएगा. अब एक पार्ट कितने का बराबर है, इसके लिए हम पेरीमीटर को डिवाइड करेंगे टोटल पे. सो पेरीमीटर इज 72 और टोटल रेशो पार्ट्स हमारे साथ बने हैं 12. तो 72 डिवाइड बाई 12 इज 6 सेंटीमीटर. अब शॉर्टेस्ट साइड किसका बराबर होगा, जो रेशो में सबसे कम है. रेशो में सबसे कम 3 है, तो ये शॉर्टेस्ट जो साइड है वो 3 पार्ट्स का बराबर है और एक पार्ट हमने फाइंड किया कि 6 सेंटीमीटर का बराबर है. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 18 सेंटीमीटर. Two chords of a circle intersect. One chord segments are 3 cm and 8 cm. One segment of the other is 4 cm. Its other segment is 6 cm. अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटरसेक्टिंग कार्ड्स थ्योरम समझ आना चाहिए. अब यहाँ पर लेट सपोज ये एक सर्कल है, इसके बीच में ये इसका सेंटर है इस सर्कल का.
और इसमें लेट सपोज 2 कार्ड्स है, एक कार्ड इसका ये आया है, दूसरा कार्ड इसका ये है। यहाँ पर इन दोनों को इंटरसेक्ट किया जाए, मतलब एक दूसरे को ये दोनों कार्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग कार्ड थ्योरम है वो ये कहता है कि इस कार्ड का ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसको जब लेट सपोज ये साइड इसका ए हो गया और ये जो है इसका बी हो गया, ठीक है। तो इसका जो a मल्टीप्लाइड बाई बी है, इसकी जो मेजरमेंट है वो किस चीज़ के बराबर होगी, वो बराबर होगी, लेट सपोज जो दूसरा कार्ड है इसका ये साइड c हो गया और ये जो है ये d हो गया। तो ये इस c और d के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये हमारे साथ इस थ्योरम को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग कार्ड्स थ्योरम। मतलब 2 कार्ड्स जब एक दूसरे को एक ही सर्कल में इंटरसेक्ट करते हैं कि इनके जो सेगमेंट्स है, इन दोनों के सेगमेंट्स का प्रोडक्ट बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कार्ड के सेगमेंट्स हमें दिए गए हैं, एक 3 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर है, ये एक कार्ड के सेगमेंट्स है। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 जो है ये बराबर होगा दूसरे कार्ड के सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर। अब दूसरे कार्ड के जो सेगमेंट्स है, इसमें एक सेगमेंट हमें दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा सेगमेंट हमने फाइंड करना है। तो दूसरा सेगमेंट हम इज्यूम करते हैं कि वो x के बराबर है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई x। 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 से 24 आ गया और 4 मल्टीप्लाइड बाई x से 4x आएगा। दोनों साइड को 4 से डिवाइड करें तो x हमारे साथ आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा कार्ड है उसका जो अननोन सेगमेंट है वो हमें पता चला कि वो 6 सेंटीमीटर है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ 90 डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन का पहले आप कंसेप्ट समझ लें। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका हो गया डायमीटर। डायमीटर का मतलब ये है कि सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक लाइन खींची जाती है जो कि सेंटर से पास होती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। अब इसका एक साइड और दूसरा साइड क्या कहते हैं, हाफ ऑफ सर्कल्स हो गए। अब सबटेंडेड एंगल क्या होता है, ये इस हाफ सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, ये वो सरकमफेरेंस यहाँ से शुरू होके इस सर्कल के यहाँ से शुरू होके और यहाँ से जो ये डायमीटर पास होता है यहाँ से होके यहाँ तक, इसको हाफ सर्कल कहते हैं। अब जो एंगल सबटेंडेड है वो क्या है, ये यहाँ से ये जो एंगल इस तरह बनाता है इसको यहाँ पर ये सबटेंडेड एंगल कहते हैं, जो कि हमेशा 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं। ये इसको कहते हैं टेल्स थ्योरम। टेल्स थ्योरम कहते हैं कि डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग सरकमफेरेंस पे जो सबटेंडेड एंगल बनता है, वो जो डायमीटर बनाता है वो हमेशा 90 डिग्रीज के बराबर होता है। ये थ्योरम आपने हमेशा याद रखना होगा, इसको टेल्स थ्योरम कहा जाता है। A rectangular tank measures 5 meter by 4 meter by 3 meter. Its capacity is 60,000 liters. अब क्वेश्चन में बात हो रही है एक रेक्टेंगुलर टैंक की। लेट सपोज ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है। हम एक रफ सा स्केच है एक रेक्टेंगुलर टैंक की ड्रा करते हैं। ये हमारे साथ हो गया एक रेक्टेंगुलर टैंक। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी दी गई है 5 मीटर। ये जो लेंथ है ये है 5 मीटर। इसकी जो हाइट है, हाइट हमें दी गई है 3 मीटर। लेट सपोज ये जो इसकी हाइट है ये है 3 मीटर और इसकी हमें विड्थ दी गई है। इसकी जो विड्थ है, लेट सपोज ये इसकी विड्थ हो गई, ये हमें दी गई है 4 मीटर। तो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है हमारे साथ। अब इसकी हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम यूजुअली होता है 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशन में हमें लेंथ भी पता है, विड्थ भी पता है, हाइट भी पता है। तो वॉल्यूम होता है हमारे साथ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये जो फिगर्स है ये दी गई है ऑलरेडी। हमें इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ये आएगा 60 मीटर क्यूब। अब चूंकि हमें मीटर में दिया गया है तो आंसर 60 मीटर क्यूब में आ गया। अब 1 मीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है 1000 लीटर का। तो 60 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे साथ फाइनल आंसर आएगा 60,000 लीटर्स। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज।
36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्पेयर के लिए हमारे साथ फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर ऑलरेडी हमें दी गई है जो कि 3 सेंटीमीटर है, वो इस फार्मूले में पुट कर दे तो हमारे साथ आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। द सेंट्रॉइड ऑफ द एंगल विद वर्टिसेस 0, 0, 60 एंड 39 इज 3, 3। अब यहाँ पर पहले आपको समझना होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। लेट सपोज ये हमारे साथ एक ट्रायंगल है, ये इस एंगल का हम मीडियन ड्रा करते हैं, ये यहाँ पर यहाँ आ जाता है, इस हम मीडियन ड्रा करते हैं यहाँ पर इस तरह आ जाता है, और इसका मीडियन ड्रा करते हैं यहाँ पर इस तरह आ जाता है। अब यहाँ पर जो तीनों मीडियंस एक दूसरे को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये है हमारे साथ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, एक वर्टिस ये है, एक ये वर्टिस है, जहाँ पर जो एंगल्स बने हुए हैं या जो दो लाइंस एक दूसरे को साथ मिल रहे हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब दो साइड्स जहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दी गए, एक 0, 0 है, एक 6, 0 है, और तीसरा जो है वो 3, 9 है। अब इसका जो सेंट्रॉइड है हमें फाइंड करना है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा। तो सेंट्रॉइड के लिए हमारे साथ फार्मूला है एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें दी गई है तो इन कोऑर्डिनेट्स का हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो x है इसमें 0 है, x इसमें 6 है और x इसमें 3 है। सो 0 + 6 + 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, x हमारे साथ आएगा 3। जो y है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर है y 9। तो इसका y हमारे साथ आएगा 0 + 0 + 9 डिवाइड बाई 3 इज 3। सो हमारे साथ जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज 3, 3। द इक्वेशन x = -4 represents a line parallel to the y-axis. Two angles are supplementary and one is 26 degrees greater than the other. Smaller angle is 77 degrees. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है वो x के बराबर है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, वो x + 26 हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 26 डिग्रीज ग्रेटर है। अब हमें ये भी पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा बराबर होता है 180 डिग्रीज का। जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम बराबर होता है 90 डिग्रीज का, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्रीज का। तो हमारे साथ इक्वेशन किस तरह बनेगा कि चूँकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों एंगल्स का जो सम है वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्रीज। हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं, एक हमने एज्यूम किया x और दूसरा जो x + 26। सो x + 26 = 180 डिग्रीज। इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x हमारे साथ आएगा 77 डिग्रीज। हमने इनिशियली यहाँ पर एज्यूम किया था कि लेट द स्मॉलर एंगल बी x, और x हमारे साथ 77 आ गया, सो द आंसर इज 77 डिग्रीज। The number of axes of symmetry of a regular hexagon is 6. A regular n-sided polygon has n axes of symmetry. अब यहाँ पर जो रेगुलर हेक्सागन है तो हेक्सागन के लिए n क्या है, 6 है। हेक्सा का मतलब है 6, तो इसका मतलब है कि इसके एक्सिस भी 6 ही होंगे। Some doctors or researchers publish, which conclusion necessarily follows? Some doctors publish. The exclusive R of P and Q is true when exactly one of P and Q is true. ये जो एक्सक्लूसिव R है, एक्सक्लूसिव R असल में बूलियन अलजबरा में एक लॉजिकल ऑपरेशन है, इसको XRB कहते हैं, और ये तब ट्रू होता है जब दोनों में से कोई एक जो है ट्रू होता है। लेट सपोज दो वैल्यूज़ है तो दो वैल्यूज़ में कोई एक ट्रू हो तो तब ये ट्रू होता है। अगर दोनों फॉल्स हो या दोनों ट्रू हो तो फिर ये फॉल्स होता है। तो एग्जैक्टली वन जो है P और Q में वो ट्रू होना चाहिए। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 7, 14, 12, 24, 22, 24, 42। अब इसको हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि इस पैटर्न में कौन सा फार्मूला फॉलो हुआ है। अब पैटर्न जो है ये अल्टरनेट करता है मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर सब्ट्रैक्ट होता है इससे 2। मतलब किस तरह से, अब ये देखें, लेट सपोज पहला टर्म जो है यहाँ पर 7 है, दूसरा 14 है। तो अब ये 14 किस तरह से बना है,
7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 14। अब 14 के बाद जो है 12 आया है, तो फिर इस 14 से फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो तब 12 आया है। फिर अगला टर्म जो है वो 24 है, तो 12 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 24, और फिर इस 24 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो अगला टर्म बना है 22। अब 44 किस तरह से बनेगा? 44 इस तरह से अब बनेगा कि 24 जो है मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है तो तब जो है 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है तो तब 44 बना है। इस तरह ये यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका अगला टर्म क्या बनेगा? अगला टर्म 44 माइनस 2 हो जाएगा। जिस तरह से ये अल्टरनेट है कि मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है और फिर माइनस 2 होता है, तो 44 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आएगा 42। सो द फाइनल आंसर इज 42। In a code, each letter is replaced by the preceding letter, with A replaced by Z. Bird becomes AHQC। प्रीसीडिंग लेटर का मतलब ये है कि हर लेटर से पहले जो लेटर आता है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। बी से पहले ए है बर्ड में, इस तरह बर्ड में दूसरा आई लेटर है तो आई से पहले एच आता है, फिर तीसरा आर है, आर से पहले क्यू आता है, और चौथा डी है और डी से पहले सी आता है। तो हमारे साथ जो फाइनल वर्ड बनेगा वो बनेगा AHQC। 5 files P, Q, R, S and T are stacked. P is above Q, R is below S and T is above P. But below S, what file must be topmost? S. A woman introduces a boy as the son of the only daughter of my father. The boy is her son. क्योंकि औरत कह रही है कि ये एक बेटी का बेटा है और वो बेटी उसके बाप की अकलौती बेटी है। तो अगर उसके बाप है और उस बाप की अकलौती बेटी है, जो कि अपने बाप के बारे में वो कह रही है, और वो खुद जो है औरत है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बाप की बेटी हो गई, और जिस बंदे का वो जिक्र कर रही है, जिस लड़के का, तो वो उसका सन है, मतलब अपने बेटे के बारे में बात कर रही है। A traveler walks 5 kilometers southeast, then 5 kilometers northeast. Relative to the starting point, the traveler is due east. अब लेट सपोज पहले हम डायरेक्शंस को ड्रा करते हैं। ये हमारे साथ जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। ये हमने डायरेक्शंस ड्रा किए। अब पहले जो ट्रेवलर है वो वॉक करता है 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो ये लेट सपोज ने मोमेंट किया 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट। क्योंकि ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट का मतलब ये बनता है। फिर इसने 5 किलोमीटर वॉक किया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ ये है, ठीक है, लेकिन इसने चूँकि वॉक किधर से किया, अब यहाँ पर इसी पोजीशन से इसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ वॉक किया, तो ये आ गया इधर, 5 यहाँ पर आ गया और 5 फिर जो है यहाँ पे आ गया। तो इसका आखिर में हमसे पूछता है कि नेट मोमेंट किस डायरेक्शन की तरफ है। अब यहाँ पर ये जो है ये इधर खड़ा है, तो नेट मोमेंट इसकी है ईस्ट की तरफ। No encrypted message is readable without a key. The message is readable without a key. Therefore, the message is not encrypted. क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि अगर encrypted मैसेज है तो वो की के बगैर नहीं पढ़ा जा सकेगा। अब ये मैसेज जो है की के बगैर पढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये encrypted ही नहीं है। Which is the odd one out? Violin, cello, harp, flute. फ्लूट, क्योंकि जो वायलिन है, सेलो है और हार्प है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फ्लूट है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, तो फ्लूट इसी वजह से यहाँ पर ऑड वन आउट है। द मिरर इमेज ऑफ क्लॉक शोइंग 2:35 रीड्स 9:25। अब एक क्लॉक जो है वो दीवार पे लेट सपोज लगा है और यहाँ पर एक मिरर है। इस मिरर में ये जो क्लॉक है ये दिखाई दे रहा है, तो क्लॉक में जो टाइम है वो 2:35 है, तो मिरर में क्या टाइम होगा? तो जो मिरर जो कि 12 घंटे का टाइम देता है, उसके लिए अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो मिरर में उसका टाइम दिखाई दे रहा है उसमें क्या टाइम होगा, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 12 आवर क्लॉक के लिए, कि उस टाइम को जो वो टाइम ओरिजिनल क्लॉक में दिखाई दे रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1160 से। तो 1160 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइम क्या है 2:35 हम 1160 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 9:25।
If today is Wednesday, what day was it 45 days ago? Sunday. अब 45 डेज का मतलब है 6 वीक्स प्लस 3 डेज। अब 6 वीक्स का मतलब ये है कि 6 वीक मतलब 6 हफ्ते पहले, एग्जैक्ट 6 हफ्ते पहले आज का दिन ही होगा, और आज का दिन क्या है? वेंसडे। सो 6 हफ्ते पहले वेंसडे हो गया। अब वेंसडे से हम मूव करते हैं 3 दिन और पीछे। तो 3 दिन और पीछे का मतलब है कि वेंसडे से पहले ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे से पहले मंडे होता है, और मंडे से पहले संडे होता है। तो इसका मतलब ये है कि आज से 45 दिन पहले, अगर आज वेंसडे है तो 45 दिन पहले संडे होगा। If the sum of the digits of two-digit number is 9 and the number is 5 times the sum of its digits, the number is। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो नंबर है वो n है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सम ऑफ द डिजिट्स जो है उस नंबर के वो 9 है, और इस तरह जो नंबर है वो 5 टाइम्स है ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स 9 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 जो है वो उस नंबर के बराबर हो जाएगा। सो n इक्वल्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो n जब 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 के बराबर हो जाएगा तो 5 बाई 9 इज़ 45। तो इसका मतलब है n इक्वल्स 45। तो ये जो नंबर है जो हमने फाइंड करना था वो 45 के बराबर होगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमें दिया गया है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है उस नंबर के वो 9 के बराबर होने चाहिए। तो 4 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 के ही बराबर होते हैं, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड बनाना आर पॉसिबल? 60। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इसमें हम देखते हैं कि टोटल कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। इसमें रिपीटिशन हम देखते हैं तो ए रिपीट होता है 3 टाइम्स और एन रिपीट होता है 2 टाइम्स। तो इसके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? जो टोटल लेटर्स है वो 6 है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो द फाइनल आंसर इज 60। A card is drawn from a standard deck. The probability that it is a face card is 3 over 13। एक स्टैंडर्ड डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स का मतलब है जे, क्यू एंड के, क्योंकि इस पर शक्लें बनी होती है, इसी वजह से इसको फेस कार्ड्स कहते हैं। अब इसके हर एक के 4 सूट्स होते हैं, मतलब जे के भी, क्यू के भी 4 कार्ड्स होते हैं और के भी 4 कार्ड्स होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 12। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं इसका फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला है कि the number of desired outcomes divided by the number of total possible outcomes। तो desired outcomes क्या है? 12, और total possible outcomes क्या है? 52। सो 12 को 52 पे डिवाइड कर दे तो हमारे साथ आएगा 3 over 13। Of 100 households, 60 have internet, 55 have television and 25 have both। The number with neither is 10। इसके लिए हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फार्मूला यूज करते हैं। विद इंटरनेट और टीवी वो फाइंड करते हैं 60 प्लस 20, 55 माइनस 25 दैट इज 90। टोटल हाउस होल्ड है 100, तो जिसके साथ दोनों नहीं है तो वो कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 90 विच इक्वल्स 10। A large cube cut into 216 equal cubes. How many small cubes lie along one edge? 6। टोटल स्मॉल क्यूब्स के लिए फार्मूला है n क्यूब। n क्यूब हमें दिया गया है यहाँ पर 216 के वो बराबर है, तो n क्यूब इक्वल्स 216। 216 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 क्यूब, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो n क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 क्यूब का। अब अगर पावर जो है दोनों का सेम है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है ये भी बराबर होना चाहिए, तो हम n इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल क्यूब्स है जो कि लाई करता है एमंग वन एज वो है 6। A man is 24 years older than his daughter. In 4 years he will be 3 times her daughter. The daughter's present age is 8 years। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो डी के बराबर है। तो गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि जो बाप है वो 24 साल बड़ा है बेटी से, तो बाप का एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज डी प्लस 24 हो जाएगा। अब हम 4 साल बाद जाते हैं, मतलब 4 साल और ऐड करते हैं दोनों के साथ। तो बाप का जो प्रेजेंट एज है वो डी प्लस 24 था, तो 4 साल बाद क्या होगा? ये डी प्लस 28 हो जाएगा। और जो बेटी का एज है 4 साल बाद वो क्या होगा? डी प्लस 4 हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 4 साल बाद जो बाप की एज है वो बेटी के 3 गुना होगा। तो इसका मतलब है कि d + 28 विल बी इक्वल टू 3 × d + 4। तो इससे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो d हमारे साथ आएगा 8। तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो 8 है। Alif starts at floor 8, goes down 5 floors, up 9, down 7 and up 2. It stops at floor 7. अब ये स्टार्ट होता है एट फ्लोर 8, फिर ये जाता है 5 फ्लोर नीचे। तो कौन से फ्लोर पे आ गया? 3rd फ्लोर पे आ गया। फिर ये 9 फ्लोर, फिर इससे ऊपर जाता है तो 3 + 9 = 12, अब 12वें फ्लोर पे आ गया। फिर 7 फ्लोर नीचे जाता है तो 12 - 5, ये 5वें फ्लोर पे है इस वक्त। फिर 2 फ्लोर और ऊपर जाता है तो 5 + 2 हो गया, इट विल बी इक्वल टू 7। सो द फाइनल आंसर इज 7। The least number of people required to guarantee that at least 3 were born in the same month is 25.